So dear students, today we are going to discuss very important concept of coordination compounds. We will discuss theories of coordination compounds. We are going to discuss the first very theory, that's Werner's theory of coordination compounds. बहुत ही important है for competitive exams as well as board exams, लेकिन ज़्यादा important है किसी भी competitive exam के लिए ये तीन theories. इन तीन theories को समझना बहुत easy है. You can solve every type of question after watching my videos. I promise it, because I know I can give you each type of depth, the depth you require for your competitive exams. I'll provide you in all the theories. So let us start our topic. That's Werner's theory of coordination compounds. Now see, what is Werner's theory? What are the main postulates of this theory? What does Werner's theory tell us about the coordination compounds? Now see, Werner's theory has certain postulates. The important postulates are The important postulates of this theory are: number first postulate is the metal atom in a coordination complex. We know that, for example, we consider a coordination complex K4 FeCN whole 3. We have considered this coordination complex. According to Werner's theory, in this coordination complex, this metal ion possesses two types of valencies. This is a metal ion. It possesses two types of valencies. There are two types of valencies associated with this metal ion. That is primary valency and secondary valency. Metal ion possesses two types of valencies, the primary valency and secondary valency. Means the first postulate is that the metal ion in a coordination complex possesses two types of valencies, primary valency and secondary valencies. This primary valency, it's also called principal valency. This primary valency, it's also called ionizable valency means that valency which can be ionized. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि कौन सा पार्ट इसमें आयनाइजेबल होता है और कौन सा पार्ट आयनाइजेबल नहीं होता. ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहलाती है. इस प्राइमरी वैलेंसी को आप आयनाइजेबल वैलेंसी भी कह सकते हैं. और मेटल के पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है. सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जिसको हम आयनाइज नहीं कर सकते हैं. आयनाइज नहीं मतलब दैट इज विद इन द कोऑर्डिनेशन, not within the coordination sphere, that coordinate let us say that lies within the coordination sphere. It is 6 that lies within the coordination sphere. उसको हम आयनाइज नहीं कर सकते. आयनाइज मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई कम्प्लेक्स है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कम्प्लेक्स कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3. हमें पता है ये जो आयन्स हैं, अगर हम इस मेटल कम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक कैटायनिक पार्ट मिलेगा और एक एनायनिक पार्ट मिलेगा. ये जो पार्ट है अगर हम इसको ट्रीट करेंगे विद सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिक सा क्वेश्चन है. क्या होता है? हमें पता है प्रेसिपिटेशन होता है. तो प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? ये जो सिल्वर है ये इस आयनाइजेबल वैलेंसी के साथ बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे माइनस टाइम्स AgCl लॉस हो जाएगा. अगर हम ये एक्सिस में लेंगे तो 3 AgCl मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो दिस वैलेंसी विच इज आयनाइज्ड विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, इट्स कॉल्ड आयनाइजेबल वैलेंसी. यहाँ पे इसको आयनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं. नाउ सी, इन पोस्टुलेट्स को पहले लिखते हैं. नाउ फर्स्ट पोस्टुलेट इज मेटल एटम और आयन in a coordination complex possesses two types of valencies. It possesses two types of valencies. मेटल एटम जो होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, उसमें दो तरह की वैलेंसीज होती है. नंबर फर्स्ट इज आयनाइजेबल वैलेंसी and number second is non-ionizable valency. Metal atom in a coordination complex possesses two types of valencies. Number first is ionizable, number second is non-ionizable, जिसका हम प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे. नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी जो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा. आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल क्या होता है? फर्स्ट पार्ट जो मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दिखाया था, मैंने वहाँ डबल साल्ट और कम्प्लेक्स साल्ट को डिस्कस किया था. मैंने कहा था कम्प्लेक्स साल्ट में हम आयन बना सकते हैं एक कम्प्लेक्स आयन का, और जो कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयन हैं उनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं.
This is ionizable valency and non-ionizable valency. So metal ion possesses two types of valencies. One is known as primary valency or ionizable valency, and the other is known as non-ionizable valency. This ionizable valency, it's also known as primary valency. It's also known as primary valency, and this non-ionizable valency, it's also known as secondary valency. It is also known as secondary valency. This primary valency, it's all ionizable valency is also known as primary valency, and non-ionizable valency is known as secondary valency. So metal atom possesses here two types of valencies, primary or ionizable, secondary or non-ionizable. Now second important postulate is that जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, दे कंट्रीब्यूट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है they constitute the coordination number of the metal, they constitute the coordination number of the complex. मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो डिटरमाइन करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी से, और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिटरमाइन करती है प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल and secondary valencies determine the coordination number of the metal. So these two valencies, they have different roles to play. One is the primary valency, it constitutes the oxidation state of the metal, and the second is secondary valency, which constitutes the coordination number of the metal. So number second is primary valency. Primary valency constitutes the oxidation state of metal. The oxidation state of metal means you can determine oxidation state of the metal from primary valencies, and secondary valency contribute or constitute the coordination number of metal. The coordination number of metal. तो हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN होल 6, तो यहाँ पे अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, देन +4 × 1 बिकॉज हमारे पास 4 पोटेशियम आयन्स है. साइनाइड हमारा नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड है, नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड, इसकी चार्ज -1 है, +6 × -1 = 0. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 4 - 6 दैट इज x - 2 = 0, दैट्स x = +2. यहाँ पे चार्ज हुआ, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन दिस कॉम्प्लेक्स इट इज 2. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइमरी वैलेंसी. देयरफॉर प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इट इज 2. यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की 2 है. प्राइमरी वैलेंसी क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर. तो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स जितने भी आपके लिगेंड्स होते हैं वो हमें कोऑर्डिनेशन, उनसे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है. ये मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लाइगेंड्स जितने भी होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे 6 मोनोडेंटेट लाइगेंड्स विद इन द कोऑर्डिनेशन से फिर है, तो इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. तो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. तो हम इसी बात को आगे समझते हैं. These are two important postulates. One more postulate, third postulate is, जो भी हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो या तो हमारा नेगेटिवली चार्जेड आयन होगा या पॉजिटिवली चार्जेड आयन होगा. प्राइमरी वैलेंसी कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता है. ना प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय either negatively charged or positively charged ligands. पॉजिटिवली चार्जेड लाइगेंड्स जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाई करता है या तो हमारा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, बट नॉट न्यूट्रल लिगेंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट नेवर न्यूट्रल लिगेंड. ये अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट नेवर न्यूट्रल लिगेंड. प्राइमरी वैलेंसी न्यूट्रल लिगेंड को सेटिस्फाई नहीं करती है. अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड कोऑर्डिनेशन से फिर के बाहर होगा भी तो वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा मेटल एटम से. that you should neglect because that does not contribute to the primary valency of metal atom. For example, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO NH3 होल 4 Cl2
होल 4 Cl2 NH3 होल ट्वाइस Cl, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में विद इन कोऑर्डिनेशन से फिर जो भी लाइगेंड्स है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को। तो यहाँ पे 4 अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी है, क्लोरीन आयन्स भी सेकेंडरी वैलेंसी है। बाद में मैं आपको बताऊंगा ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे करते हैं, लेट अस सी आफ्टर लिटिल वाइल। यहाँ तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जितने सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ये 6 बॉन्ड बनाते हैं विद मेटल एटम। जितने सेकेंडरी वैलेंसीज, जितने बॉन्ड्स बनाएंगे विद मेटल एटम, उतना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज यहाँ पे 6 होंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे क्लोरीन है और अमोनिया मॉलिक्यूल भी यहाँ पे है, लेकिन हमें पता है अमोनिया मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी ओनली वन है, दैट इज Cl, बिकॉज Cl इज अ नेगेटिवली चार्जड लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ओनली बाय नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्जड लिगेंड, बट नेवर बाय न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्यों कोई रोल नहीं है? जब इनकी स्ट्रक्चर्स लेटर ऑन हम डिटरमाइन करेंगे तब पता चलेगा इनका कोई रोल ही नहीं है। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ईदर बाय नेगेटिवली चार्जड लिगेंड्स और बाय पॉजिटिवली चार्जड लिगेंड्स। अगर हम यहीं पे सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करेंगे तो सी सेकेंडरी वैलेंसीज में अमोनिया है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन भी है नेगेटिवली चार्जड लिगेंड, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड। तो सेकेंडरी वैलेंसी में न्यूट्रल लिगेंड भी हमारा हो सकता है, हमारा नेगेटिवली चार्जड लिगेंड भी हो सकता है, इवन समटाइम्स पॉजिटिवली चार्जड लिगेंड भी हो सकता है, NO+ such as. So and secondary valencies are satisfied by negatively charged, positively charged and neutral ligands ये पहली डिफरेंस बन गई यहाँ पे। प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जड लिगेंड सेटिस्फाई कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी को इधर पॉजिटिवली चार्जड, चाहे वो नेगेटिवली चार्जड भी हो चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड भी हो, सेटिस्फाई कर सकता है। दिस वाज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाद में हम इनको अप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स पे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इन पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 4th पोस्टुलेट इज, जो भी हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। बाय नॉन डायरेक्शनल आई मीन दैट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K3FeCN होल 6 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेशन सेपेयर है। कोऑर्डिनेशन सेपेयर में जो भी लिगेंड्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। देयरफॉर साइनाइड आयन्स इंडिकेट सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है बिकॉज साइनाइड इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। ये 6 बॉन्ड बनाएंगे विद मेटल एटम, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 सी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 होता है तो हमारे जियोमेट्री जो कॉम्प्लेक्स की होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, दैट विल बी लाइक दिस। जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसमें कौन सी जियोमेट्री होगी? इसमें ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। दिस इज ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, दिस इज ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। नाउ इस ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में क्या होगा? ये जो लिगेंड्स हैं जिन्होंने डेफिनेट शेप प्रोवाइड की टू द मेटल एटम, जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को डेफिनेट जियोमेट्री दी, उसको कहते हैं डायरेक्शनल लिगेंड्स। इन लिगेंड्स को कहेंगे डायरेक्शनल लिगेंड्स। डायरेक्शनल लिगेंड्स आर दोज which provide definite geometry to the metal atom or which provide definite geometry to the complex ion, to the complex compound. So ये जो हमारा complex compound है इसमें हमारे कुछ ligands ऐसे होंगे जिनको हम कहेंगे directional ligands, which are directed in space in such a way so that they give rise to definite geometry to the complex compound. जो भी हमारा complex compound होगा, coordination compound होगा, उसकी एक डेफिनेट जियोमेट्री होगी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इस कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री कैसे आई? बिकॉज ऑफ दीज सेकेंडरी वैलेंसीज, बिकॉज ऑफ दीज लिगेंड्स व्हिच आर विद इन द कोऑर्डिनेशन सेपेयर। तो ये जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं डेफिनेट जियोमेट्री टू द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं, जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है डेफिनेट जियोमेट्री प्रोवाइड करने में।
तो ये क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, they are non-directional in nature, means they do not provide definite geometry to the metal atom or to the complex, and secondary valencies are directional in nature. They are directional in nature, means they are directed in such a way towards, they are directed in such a way towards metal ion that they give rise to a definite geometry to the coordination complex. They are directional in nature and give definite geometry to the complex compound, वो प्रोवाइड करते हैं डेफिनेट जियोमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसीज कितने होंगी, 2। सेकेंडरी वैलेंसीज 2 मतलब ये हमारा फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल Ag, ये मेटल है, इसके साथ 2 क्लोरीन आयन्स हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, AgCl। जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी लीनियर। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, यहाँ पे हम लिखेंगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो जियोमेट्री लीनियर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मीन्स सेकेंडरी वैलेंसीज आर 2, सेकेंडरी वैलेंसीज आर 2, they can be monodentate or bidentate. If they are bidentate then they form only one bidentate ligand forms a bond। कैसे बनाता है आगे देखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तब कौन सी जियोमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ये हम बॉन्डिंग से पढ़ के आए हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा then 2 geometries are possible, one is known as tetrahedral जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल 109.28 होगा, एंड वन इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लानर हाइब्रिडाइजेशन DsP2, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 होगा। स्क्वायर प्लानर फॉर एग्जांपल हमने एक कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था PtCl2NH3 होल ट्वाइस सिस्प्लैटिन एंड ट्रांसप्लैटिन, तो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। प्लैटिनम कैसे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे अदर कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल बनते हैं, वो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्लैटिनम, क्लोरीन, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनिया, दिस इज ट्रांस आइसोमर बिकॉज 2 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये हमारे पास स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हमारी जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ना दिस इज ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है यही हमें बताती है कि जियोमेट्री कॉम्प्लेक्स की क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स है, वी हैव कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6, तो आपको बताना है Cl3। यहाँ पे आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी है, दिस इज आयनाइजेबल वैलेंसी। आयनाइजेबल वैलेंसी में बी नेगेटिवली चार्जेड और positively charged but not neutral, this is negatively charged, chlorine is a negatively charged ligand, this is ionizable or we can call it primary valency, and within square brackets जो है इसको कहते हैं secondary valency। तो यहाँ पे secondary valency monodentate ligand satisfy करता है, कितने monodentate ligands हैं, 6, तो यहाँ पे coordination number 6 होगा। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसीज 3 हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कॉरस्पॉन्ड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। ना सी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स द जियोमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स शुड बी ऑक्टाहेड्रल। ना ऑक्टाहेड्रल अब कौन सी होगी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल शेप्स व्हिच अराइज, वन इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अदर इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल, वो डिस्कस करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तब तक के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं। क्या होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अराइज होता है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, और जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उससे हम डिटरमाइन करेंगे जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उससे हम डिटरमाइन करेंगे जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, वर्नर ने कौन से एग्जाम्पल्स पे अपनी थ्योरी लगाई, मतलब किस एग्जाम्पल को वर्नर ने डिस्कस किया।
नाउ सी हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे CO 6 टाइम्स NH3 Cl3। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, हमें नहीं पता है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। हम कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स को हम एक्सिस ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स हमें देता है ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, इसे बी भी बना सकते हैं, सी भी बना सकते हैं, डी भी बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक कॉम्प्लेक्स है CO 6 टाइम्स अमोनिया एंड 3 टाइम्स क्लोरीन। अभी हमें पता नहीं है आयनाइजेबल क्या है, यहाँ पे नॉन आयनाइजेबल क्या है ना। क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स से हम 4 कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ए को हम अगर ट्रीट करेंगे विद एक्सिस ऑफ AgNO3, एक्सिस ऑफ AgNO3, बी को अगर ट्रीट करेंगे एक्सिस ऑफ AgNO3, आपको पता है AgNO3 क्या करेगा, ये बनाएगा प्रेसिपिटेट विद व्हाट, विद सेकेंडरी वैलेंसी, सॉरी विद प्राइमरी वैलेंसी, एक्सिस ऑफ AgNO3। इसको भी ट्रीट करेंगे विद एक्सिस ऑफ AgNO3। जब हमने इसको ट्रीट किया विद एक्सिस ऑफ AgNO3 तो यहाँ 0 मोल्स ऑफ AgCl मीन्स कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना AgCl का, 0 मोल्स ऑफ AgCl बना। जब इसको ट्रीट किया तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl बन गया। जब इसको ट्रीट किया तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो गए, और जब इसको ट्रीट किया तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हुए। अब हम बता सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि हमें पता है जब भी AgNO3 के साथ हम ट्रीट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स को, तो वहाँ से प्रेसिपिटेट उसी का बनेगा जो आयनाइजेबल वैलेंसी होगी। आयनाइजेबल वैलेंसी मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर होगा, तो वही क्लोरीन बाहर निकल के आएगा जहाँ पे ये क्लोरीन का क्या होगा, आयनाइजेबल वैलेंसी। तो कॉम्प्लेक्स ए को देखते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ए में कोई भी हमें AgCl नहीं बनता है, 0 AgCl मीन्स कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। ये कब पॉसिबल है, जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा कोबाल्ट, इसमें अगर NH3 होल थ्राइस होगा, ये जो क्लोरीन है ये नॉन आयनाइजेबल हो। अगर ये आयनाइजेबल होते तो बाहर निकलते। नॉन आयनाइजेबल कैसे होंगे, जब ये विद इन कोऑर्डिनेशन से फेयर होंगे Cl3। ये हमारे कॉम्प्लेक्स की फार्मूला बन गई। अब यहाँ पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स थे, तो 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अमोनिया मॉलिक्यूल कैन नॉट बी अ प्राइमरी वैलेंसी। व्हाई? बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल स्पीशीज। ये अमोनिया मॉलिक्यूल प्राइमरी वैलेंसी नहीं हो सकती है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल स्पीशीज। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ट्रीट करेंगे, अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ट्रीट करेंगे विद AgNO3 एक्सिस ऑफ AgNO3, तो आपको पता है AgNO3 क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। कौन सी वैलेंसी को? प्राइमरी वैलेंसी को। तो यहाँ पे कोई प्राइमरी वैलेंसी है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है कुछ? कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज नॉट अ प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ सेटिस्फाई होती है बाय पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज, नॉट बाय न्यूट्रल स्पीशीज। तो यहाँ पे 0 मोल्स ऑफ AgCl बन जाएंगे। then this will be the structure of the this will be the formula of the complex। इस complex की फार्मूला ये होगी। now see यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे अमोनिया है, लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं बिकॉज अमोनिया कैन नॉट बी प्राइमरी वैलेंसी। व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होती है वो सिर्फ सेटिस्फाई होती है नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्जड लिगेंड से। तो लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कॉरस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, एक्स, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स। अमोनिया कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल, +3 × 0। क्लोरीन कौन सा लिगेंड है? नेगेटिवली चार्जड, +3 × -1 इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो 0 और वी कैन नॉट टेक इट, +3 × 0। आप लिख भी सकते हो 3 × 0 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे +3 चार्ज आया। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया तो यहाँ पे 3 प्राइमरी आयनाइजेबल वैलेंसी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मसला खड़ा होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो यहाँ पे कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से आ गया? क्लोरीन की वजह से। तो ये जो क्लोरीन है, जो हमारा बाहर भी हो सकता है, अब ये अंदर है, ये जो क्लोरीन है ये एक्ट करता है बोथ एज प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो क्लोरीन है
बिकॉज इस क्लोरीन की वजह से यहाँ पे क्या आया, चार्ज। इस क्लोरीन की वजह से यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से आता है, प्राइमरी वैलेंसी की वजह से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट से, दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट इंक्लूड न्यूट्रल लिगेंड्स। तो ये जो क्लोरीन है ये विद इन द कोऑर्डिनेशन से पेयर है। अगर विद इन द कोऑर्डिनेशन से पेयर है तो सेकेंडरी वैलेंसी है, लेकिन इसी क्लोरीन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। अगर इसी क्लोरीन की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इस क्लोरीन की वजह से, उतना इसका आयनाइजेबल वैलेंसी भी होगी। मीन्स +3 चार्ज आ गया, इसलिए यह +3 आयनाइजेबल वैलेंसी भी होगी। मीन्स क्लोरीन कैन एक्ट बोथ हियर एज ionizable and non-ionizable valency, means as primary as well as secondary valency। तो क्लोरीन यहाँ दोनों वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी। अब मसला है, अगर क्लोरीन बोथ वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, तो इसको शो कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इससे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, हम ये वाला स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे ना। सी यहाँ पे कितने मोल्स AgCl आते हैं, यहाँ पे 1 मोल AgCl बनता है। मीन्स हमारा कोऑर्डिनेशन से पेयर जो है उसके बाहर एक क्लोरीन है जो AgNO3 के साथ बाहर निकलता है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे CO NH3 एक अमोनिया को अंदर लाएंगे Cl2, और बाहर एक NH3 बाहर एक क्लोरीन को लेंगे। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे विद एक्सेस ऑफ AgNO3, तो AgNO3 इस क्लोरीन को क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा, यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा, 1 मोल ऑफ AgCl। तो नाउ सी हियर, ये जो वैलेंसीज, ये जो विद इन द कोऑर्डिनेशन से पेयर है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन से पेयर में जो लिगेंड्स हैं वो डेफिनेटली क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज। सेकेंडरी वैलेंसीज क्या डिनोट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 सेकेंडरी वैलेंसीज, 2 सेकेंडरी वैलेंसीज। सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल लिगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 6। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये न्यूट्रल वाला पार्ट प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है यहाँ पे, ओनली 1, दैट इज Cl नेगेटिव, क्लोरीन पार्ट। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन से पेयर, वो प्रेसिपिटेट होती है, दैट गेट्स प्रेसिपिटेटेड विद AgNO3 दैट फॉर्म्स AgCl। नाउ सी अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, अब हम इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X +4 × 0 बिकॉज चार्ज ऑन अमोनिया इज 0, +2 × -1, इसका भी 0 है, -1 इसका -1, -1 इज इक्वल टू 0, दैट्स X, -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 3। ये 3 किसकी वजह से आया, एक इस क्लोरीन की वजह से आया, 2 इस क्लोरीन की वजह से आया, तभी तो ये +3 बन गया ना, तब तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कॉरस्पॉन्ड किसको करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉरस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी वैलेंसी। तो ये जो क्लोरीन है ये तो प्राइमरी वैलेंसी है, लेकिन यहाँ पे कितने प्राइमरी वैलेंसीज होने चाहिए, 3। देयरफॉर ये जो क्लोरीन है जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, ये एक्ट करेंगे बोथ एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज, तभी जाके यहाँ पे +3 आएगा। I think you got it. Now let us take one more compound, that is third type of compound which we can form. Third type of compound. Third type of compound क्या है, क्या हो सकता है, 2 AgCl मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। 2 AgCl अगर हम ट्रीट करेंगे विद एक्सेस ऑफ AgNO3, तो आउटसाइड द ब्रैकेट क्या होना चाहिए, आउटसाइड द ब्रैकेट 2 क्लोरीन आयन्स होने चाहिए, तभी तो ये इसके साथ प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। तो CO NH3 Cl, दिस इज NH3, ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया कंपाउंड का। इस फार्मूला को अगर हम देखेंगे, ये विद इन द कोऑर्डिनेशन से पेयर है, 5 अमोनिया लिगेंड्स है, 1 क्लोरीन लिगेंड्स है, टोटल लिगेंड्स 6 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेकेंडरी वैलेंसीज कौन कौन सी है, अमोनिया एंड क्लोरीन, सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी न्यूट्रल। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कौन है, ओनली क्लोरीन, बिकॉज दिस अमोनिया कैन नॉट बी प्राइमरी वैलेंसी, न्यूट्रल लिगेंड्स कैन नेवर बी प्राइमरी वैलेंसी। कभी गलती नहीं करना, कॉम्प्लेक्स को देख के ऐसा नहीं कहना जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर है वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी होती है, नहीं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर कभी न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है, दैट विल नेवर कॉरस्पॉन्ड टू प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी ये 2 है, 2 क्लोराइड आयन्स, दे आर प्राइमरी वैलेंसी। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दिस इज X
अमोनिया मॉलिक्यूल्स का 0, 5 इंटू 0, इस क्लोरीन का -1, इस अमोनिया का 0, इस क्लोरीन का -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी 3 होना चाहिए, लेकिन निकलता कितना है 2। देयरफॉर ये जो क्लोरीन है ये एक्ट करेगा बोथ एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, तभी तो 2 और 1 3 आ सकते हैं। इसको काउंट नहीं करना है। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड नेवर सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी। नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ वाला पार्ट जो इसका, जहाँ पे हमें 3 AgCl मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 3 AgCl मॉलिक्यूल्स। इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 और 16 में, एंड पहले भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 AgCl तब मिलेंगे जब हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर 3 क्लोराइड आयन्स होंगे। तो कॉम्प्लेक्स की फार्मूला क्या होगी, होल 6 3। ना अब यहाँ पे आप देखो, ये जो क्लोराइड आयन्स हैं ये नेगेटिवली चार्जड हैं, कोऑर्डिनेशन से पेयर के बाहर है, या आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी है। किसके साथ ट्रीट किया, AgNO3 एक्सेस। एक्सेस मीन्स ऑल द 3 विल गेट आयनाइज्ड एंड प्रेसिपिटेटेड। ना से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x +6 इंटू 0 +3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। इसका -1 है, 3 इंटू -1 दैट्स x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने ऑक्सीडेशन स्टेट उतने क्या होने चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पे क्लोरीन एक्ट करेगा ओनली प्राइमरी वैलेंसी। जब नेगेटिव लिगेंड आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा तो ओनली प्राइमरी वैलेंसी। अगर ये विद इन द कोऑर्डिनेशन से पेयर भी होगा तो ये एक्ट करेगा कभी कभी एज सेकेंडरी वैलेंसी भी टू सेटिस्फाई दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हमारा काम क्या बनता है, हम इन सारे कॉम्प्लेक्स की ABCD जो कॉम्प्लेक्स बनाए हमने, इनके हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो एक कॉम्प्लेक्स हमारा था CONH3 होल 6 Cl3, दिस वाज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, लेट इट बी फर्स्ट। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स था CONH3, एक अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर, एक क्लोराइड आयन अंदर, NH3 होल 5 Cl अमोनिया और Cl2। इस अमोनिया की आप बात भी नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट एन आयनाइजेबल वैलेंसी। ना थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या मिलता है, एक और अमोनिया मॉलिक्यूल को बाहर, एक और क्लोरीन को अंदर, CONH3 होल 4 Cl2। अब कितने अमोनिया बाहर, 2, NH3 होल ट्वाइस Cl। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या मिली हमको, CONH3 तीनों क्लोरीन अंदर, Cl3 और ऑल द अमोनिया मॉलिक्यूल्स बाहर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 टाइम्स अमोनिया और NH3 होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। सी, ये जो अंदर लाइगेंड्स हैं ये कॉरेस्पॉन्ड करेंगे सेकेंडरी वैलेंसीज को, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। octahedral geometry means like this structure, this is octahedral geometry। तो कितने सेकेंडरी वैलेंसीज है जो स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं, जिनसे हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, 6। तो यहाँ पे एक अमोनिया, 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 यहाँ पे एक अमोनिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स हैं ये एक्ट करते हैं एज प्राइमरी वैलेंसी। जो भी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड बॉन्ड से दिखाते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम सॉलिड बॉन्ड से दिखाते हैं। ये सेकेंडरी वैलेंसीज थी, इनको मैंने सॉलिड बॉन्ड से दिखाया। दी सेकेंडरी वैलेंसीज आर शोन बाय सॉलिड लाइन्स। और प्राइमरी वैलेंसीज कितने हैं, यहाँ पे 3। तो इन प्राइमरी वैलेंसीज को हम डॉटेड बॉन्ड से दिखाएंगे। This dotted bond indicates that these chloride ions, they are primary valencies. Primary valencies means they can be precipitated. These chloride ions can be precipitated. They can be precipitated. अब इस सारे कॉम्प्लेक्स को हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में भर सकते हैं। अब हम चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हैं। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करो, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3। तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आ गया +3। टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स ये आ गया हमारा +3। टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स हमें आ गया +3। अब सी, अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेशन से पेयर है।
जितने यहाँ कोऑर्डिनेशन से पेयर में लाइगेंड से उतना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो अंदर लाइगेंड्स है ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज। तो यहाँ पे अमोनिया कहीं भी लगा दो, अभी हम इसकी रिपल्शन की बात नहीं करते हैं, इसलिए मर्जी है कहाँ भी लगा दो ना। दिस इज एंड देयर इज वन क्लोरीन एटम। ना आपको पता है ये जो अमोनिया बाहर है ये कुछ भी नहीं एक्ट करता है, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाहर जो होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कैन नेवर बी प्राइमरी वैलेंसी। अब आप इसको रब आउट भी कर सकते हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये जो 2 क्लोरीन आयन्स बाहर हैं ये एक्ट करेंगे एज प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाएंगे? विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, दिस इज क्लोरीन, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, दिस इज क्लोरीन। तो अब हमारा ये वाला क्लोरीन जो रह गया, जो अंदर आया, ये एक्ट करता है बोथ एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को हमने सॉलिड लाइन से ड्रा किया, अब इसके ऊपर हम डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हैं, बिकॉज इट कैन एक्ट बोथ एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये वाली लाइन इंडिकेट करेगी प्राइमरी वैलेंसी, ये वाली लाइन इंडिकेट करेगी सेकेंडरी वैलेंसी। क्यों ये एक्ट करता है बोथ एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अच्छा, यहाँ पे चार्ज निकालो, 2 क्लोरीन माइनस बाहर, यहाँ पे +2 चार्ज, तो इस कॉम्प्लेक्स में +2 चार्ज है, +2 चार्ज कॉम्प्लेक्स। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बना दो यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब बाहर क्या है? अमोनिया लिगेंड्स। अमोनिया लिगेंड्स बाहर जो लिगेंड्स है वो एक्ट करेंगे एज आयनाइजेबल वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन अमोनिया एक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे एक ही प्राइमरी वैलेंसी है, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है मेटल आयन पे वो +3 है, यहाँ पे +3 है, जो हमने पहले देखा ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स देयर शुड बी 3 प्राइमरी वैलेंसीज। तो ये जो अंदर जो 2 क्लोरीन हैं ये एक्ट करेंगे बोथ एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ द स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा? यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग चार्ज। ना अगर इस कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, ये 3 है, ये भी 3 है, 6 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन 6 नंबर मीन्स वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब आप मुझे बता, ये क्लोरीन एक्ट करेंगे, ये अमोनिया क्या एक्ट करेगा? कुछ नहीं एक्ट करेगा, ये कोऑर्डिनेशन से पेयर के बाहर है, इसको एक्ट करना चाहिए था आयनाइजेबल वैलेंसी, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल डज नॉट एक्ट एज आयनाइजेबल वैलेंसी। तो क्या होगा? इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन चार्ज ऑन द, ये जो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 0 है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 0 है, बिकॉज चार्ज हम क्रिस्क्रॉस रूल से निकालते थे, चार्ज हम ऐसे भी निकालेंगे। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो चार्ज कैसे निकालते थे? x प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स इज इक्वल टू 0, +3 -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चार्ज 0 है ना। सी यहाँ पे अगर चार्ज 0 है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इंडिकेट्स दैट देयर शुड बी 3 आयनाइजेबल वैलेंसीज। तो 3 आयनाइजेबल वैलेंसीज कौन है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट देती है। तो ये जो लाइगेंड्स हैं क्लोराइड आयन्स, ये एक्ट करेंगे बोथ एज मोनोडेंटेट, बोथ एज आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज। दैट्स वाई हम इनको 2 बॉन्ड से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हम कैसे किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। तो आप मुझे अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स से कितने आयन्स आते हैं? एक आता है हमारा कैटायनिक पार्ट, दिस इज 1 कैटायनिक पार्ट +3 क्लोराइड आयन्स, दिस इज एनायनिक पार्ट। तो टोटल यहाँ पे 4 आयन्स निकलते हैं। इसको मैं अलग से आप डिस्कस करूँगा, आप इसको नोट डाउन करो। तब तक मैं देखूँगा लेंथ ऑफ वीडियो क्या हुई। ये बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है मुझे लगता है। हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे यहाँ पे, या हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में ही इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है NH3 Cl3। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या है? 3 + चार्ज। तो ये हमारा कैटायनिक पार्ट बन गया,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैटायन के पास एक चार्ज, दिस इज कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज एनायनिक पार्ट। तो कैटायन, दिस एनायनिक पार्ट इज 3 क्लोराइड आयंस एंड दिस इज कैटायनिक पार्ट। तो कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट में टोटल चार्जेस कितने हैं? यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पार्ट एक कंसिडर करेंगे, मतलब दिस इज कैटायनिक पार्ट, दिस इज एनायनिक पार्ट। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चार्जेस निकालेंगे इन चारों कॉम्प्लेक्सेस की और देखेंगे जिसकी चार्ज जितनी ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ आयन्स उतने ज़्यादा फर्निश होते हैं। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स फर्निश होते हैं उतनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उतना ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात भी करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनेगा। आप तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। आई होप आपको वर्नर्स थ्योरी समझ में आई होगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you have understood Werner's theory, then I will start its application part. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.